अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक है? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस एंड में लगा लेंगे इंशाल्लाह। फिर अभी काफी सारे बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम वेट कर लें क्लास के स्टार्ट होने में। तो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन है वैसे भी, तो फिर क्योंकि टाइम लग जाने, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाने, क्योंकि टाइम अपना टाइम फिक्स है तो चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो अपने टाइम पे आ जाए ना। ये तो नहीं कि हर लेक्चर में हम वेट करें 5-10 मिनट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. Today we are moving towards a very important and practical concept in programming, which is strings. So far in this course, we have mostly worked with integers, floating point numbers, simple variables. ये सब हमने किया over the past, arrays and things like that, basic functions. So in real world software, do we only deal with numbers? क्या मेरा क्वेश्चन है कि क्या रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में हम सिर्फ नंबर्स में ही डील करते हैं? यस और नो? No, sir. No, sir, obviously not. Because in reality, most of the data we interact with is actually textual data, such as your name, your email, messages on WhatsApp, search queries on Google, comments on social media, and things. So all of this is handled using string. So basically, today's topic objective is to understand what strings are. We need to learn how to create them in C++, then learn how to manipulate them using built-in function. So if I have a real life connection, whenever you log into a system, तो username जो आपसे मांगते हैं वो भी string होता है. Password needed is string. So strings are actually core to almost each and every application. So by the end of this lecture, you should be comfortable with strings just like you work with integers जो अभी तक किया हुआ. अच्छा, so this lecture is basically part of your computer programming course. Up till now, हमने variables, data types, loops, arrays. So basically now we are going to extend that knowledge. An important connection is strings are actually closely related to arrays because internally strings are stored as arrays of characters. So that's why आगे पीछे मैंने ये कि arrays पहले किया तो ये basically they are also stored as array of characters, but instead of handling everything manually, C++ gives us much easier and powerful way using the string class. So things of today's lecture is from moving from basic tools to smarter tools. So what is string? Basically, string है क्या चीज? Let's formally define string. A string is a sequence of characters. Now, what does that mean? Characters can include alphabets like A, B, C. It can include numbers 1, 2, 3. It can include special symbols at the rate, hash, dollar, and things like that. So a string can be Ali, name Pakistan can be a string. 1, 2, 3, 4, 5 can be a string. Hello at the rate 1, 2, 3, it can be a string. So even 1, 2, 3, 4, 5 is a string, not a number because it is enclosed in double quotes. जो भी अगर double quotes में हम कोई चीज भी लिख दें that is string. तो string number भी अगर double quotes में आ जाए that is even a string. So think of a string like a word written in a notebook. So each letter is a character and complete word अगर जो हम लिखते हैं that is a string. Another example आपका जो CNIC number होता है, if stored as a number, calculation possible. If stored as a string, treated as text, better for IDs. So that's why strings are very important in databases, forms, user input, and so C++ strings are basically sequence of characters stored in character array. अरे हमने बोला ये character array में store होते हैं और strings are used to store मैंने बताया words, text,
आपका उसके अलावा भी इसमें क्या आता है, दे आल्सो यूज टू स्टोर डेटा सच एज नंबर्स एंड अदर टाइप ऑफ स्पेशल सिंबल्स और इंफॉर्मेशन. So strings in C++ can be defined either using the std or string class. Ways to define strings के strings को हम कैसे define कर सकते हैं. So now the next question is, how do we create strings in C++? So there are mainly two ways. एक हमारे पास वो आगे जाके डिस्कस भी किया. देयर आर मेनली टू वेज, यूजिंग कैरेक्टर अरेज जो कि ओल्ड मेथड है, और यूजिंग स्ट्रिंग क्लास जो प्रीवियसली हमने यहाँ बता दिया कि इसको करते हुए, विच इज़ अ मॉडर्न मेथड. So in this course we will focus on string class. Why? Because it is easier to use, it is less error prone, more readable, provides built-in function. So character array basically hard है और rare है आजकल यूज में. On the other side जो string है, instead of character array हम string use करते हैं, which is much easier and very common. So we always prefer string over character array. Both can be used interchangeably, but the main thing is कि string is preferred over character array. अच्छा, अब वैसे अगर आप लोगों से पूछ लूं, if you have two options, one complex and other one simple, which one would you choose in real development? Any answers? सिंपल सर, Simple करेंगे सिंपल. सर. Simple, obviously सिंपल. simple. तो सिंपल और जो कि ज्यादा यूज होता है, तो स्ट्रिंग्स यूजिंग कीवर्ड. नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्चुअली डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, कि कैसे डिक्लेयर करते हैं. सो वी हैव टू कॉमन सिंटैक्सेस, ये जो नीचे हमारे हैं. वन इज स्ट्रिंग s is equal to summer of 2023. अदर इज स्ट्रिंग s, और हमारे पास ये इक्वल टू के पास डबल कोट्स है और ये स्मॉल पैरेंथेसिस, दोनों हमारे पास हैं. बोथ आर करेक्ट एंड डू द सेम थिंग. सो स्ट्रिंग इज बेसिकली अ डेटा टाइप, जो आप अभी तक इन कैरेक्टर फ्लोट. तो स्ट्रिंग इज बेसिकली अ डेटा टाइप. s is basically a variable name, and summer of 2023 is basically a value. So just like int x is equal to 10, जिसमें int जो था टाइप था डेटा टाइप x वेरिएबल और 10 वैल्यू. सो सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू स्ट्रिंग्स. और इसके साथ साथ वी मस्ट आल्सो इंक्लूड हैश इंक्लूड स्ट्रिंग की लाइब्रेरी, अदरवाइज प्रोग्राम विल नॉट रिकॉग्नाइज, ये स्ट्रिंग को नहीं रिकॉग्नाइज करेगा. सो कॉमन मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट्स फॉरगेट दिस हेडर फाइल एंड गेट एरर्स. So string behaves like a normal variable but store text instead of numbers. So it is more convenient to define a string with the string keyword instead of using the array keyword, because it is easy to write. String is easy to write and understand. मैंने start में कहा कि which one would you prefer. अच्छा, then we have string example. Now let's walk through a complete example, step by step explanation. Hash include iostream, hash include स्ट्रिंग हम यूज करेंगे बेसिकली. जब भी आप यूज करते हैं तो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी वो यूज करेंगे. इट इज मिसिंग हियर, बट आपने यूज करना है. सो व्हाई दीज, बिकॉज हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम फॉर आउटपुट, और स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए यूज करेंगे. देन वी हैव string s summer of 2023, and then we have string str summer of 2020. Two different ways but same result. Now printing, तो सी आउट डबल कोट्स में s इज इक्वल टू ये एज इट इज प्रिंट होगा, एंड देन s को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ. ठीक हो गया. अब इधर मैंने क्या डिफरेंस किया कि s किया और दूसरे को वेरिएबल को str किया. अच्छा, देन क्या कर रहा हूँ कि सी आउट आई हैव str डबल कोट्स में इक्वल टू और str को प्रिंट कर रहा हूँ, एंड देन रिटर्न 0. So output will be s is equal to summer of 2023, और str जो है वो भी हमारे पास जो है आ जाएगा is equal to summer of 2023. So this was basically making you sure कि same output आ सकते हैं. दो different तरीके हैं. तो programming is not about memorizing syntax, it's about understanding the behavior. So saving same file with two names, content remains the same in this particular case. So this is how
it works. अच्छा, string functions की तरफ आते हैं. Now comes the most powerful part of strings. String आते हैं come with built-in function. ठीक होगा. ये क्या होते हैं? These function help us. हम उसके साथ लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं विद इन टेक्स्ट, कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रिंग्स को. So, like in real life, think of a string like a smart object. So, if it already knows how to do things, example on your phone, you don't build a calculator, it's already there. Similarly, string जो है already has built-in operation. आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है. That's why we use string instead of character arrays. तो इस वजह से हम string use करते हैं instead of character arrays. तो हमारे पास जो है we have multiple functions. One is हम ये यूज कर सकते हैं substr, substring. So basically this function is used to create a substring from a given string. एक string आपकी like for summer of 2023, आप उससे एक substring उससे create करवाना चाहते हैं. For that particular purpose, ये सारे functions आगे जाके हम use भी करते हैं examples के साथ. So for that particular case we use substr, which is basically used to create a substring from a given string. Then we have compare. अच्छा, ये ऐसे ही हैं, keywords हैं और built-in functions हैं. तो ये built-in functions जो ये आप substring पूरा नहीं लिखेंगे, substr. इसी तरह compare के लिए you need to write it compare just like this. So this function is used to compare two strings and returns the result in the form of an integer. तो ये क्या करेंगे? दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे और इसका रिजल्ट जो होगा वो इंटीजर में के दोनों के साइज या लेंथ को हम कंपेयर करके बता देंगे. Erase, another function. This function is used to remove a certain part of a string. हम रिमूव करना चाहते हैं किसी भी जो पार्ट है स्ट्रिंग का, उसको पर्टिकुलरली रिमूव करना चाहते हैं. फॉर दैट पर्टिकुलर हम erase फंक्शन यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से और भी तो कैसे हमारे पास यूजेज की तरह स्ट्रिंग फंक्शन यूजेज. नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दीज फंक्शंस. देयर आर थ्री वेज. हम अगर रीसाइज करना चाहते हैं तो ऐड दिस डायरेक्टिव व्हेन वर्किंग विद स्ट्रिंग्स. एज आई टोल्ड अर्लियर, जब भी स्ट्रिंग्स के साथ काम करना है तो इस डायरेक्टिव को ऐड करना है या लाइब्रेरी को ऐड. अच्छा, तो थ्री वेज में फर्स्ट इज std string resize. अगर हम यूजिंग namespace std वो दैट डिक्लेयर करें, namespace not declared using namespace std, then you need to use this thing. Another way, string resize. If namespace is declared, or simply ये दो वे ये आप यूज कर सकते हैं. resize this can be used when namespace is declared. So which one to use? If you write using namespace std, then you can simply write this one. So C++ आपको flexibility देता है, but you should be or you must be consistent. So recommendation क्या है? As I told earlier कि आप जैसे भी हो ये libraries और using namespace std time and again बताता आ रहा हूँ कि ये must है here to keep code simple for beginners. कि rather than ये आप ना लिखे तो you need to repeat these things. So why not कि आप once for all स्टार्ट में ये कर दें और मेक इट सिंपल. अच्छा, अनदर फंक्शंस जो लेंथ और साइज, ये सारे हम एक करते हैं और फिर आपको बता देना कि कैसे वर्क करते हैं. सो फंक्शन लेंथ और साइज. नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन जो कि लेंथ है. सो क्या करता है लेंथ? बेसिकली इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग. जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में वो रिटर्न करता है. तो first we have hash include iostream, then we have hash include string, then we have using namespace std. Main function में आते हैं तो main function में we have string s is equal to summer of 2023. Now we have
एस डॉट लेंथ। एस डॉट लेंथ मैं वो ये प्रीवियस उसमें मैंने बता दिया था कि एस डॉट लेंथ, अगर आप लास्ट लेक्चर देखें तो उसमें भी स्ट्रिंग डॉट लेंथ मैंने बताया था कि विच कैरेक्टर्स वो जो 20 थे। अब फिर मैंने बताया कि स्ट्रिंग लेंथ -1 जीरो से लेके इंडेक्सिंग स्ट्रिंग लेंथ -1 तक जाता है, str डॉट लेंथ और -1 की टोटल लेंथ जो काउंट करेगा उससे। ये लास्ट लेक्चर में अगर रिपीट करें और याद करें तो ये हमने किया हुआ था। तो अच्छा, तो बेसिकली यही मैंने कहा था, ये नेक्स्ट लेक्चर स्ट्रिंग्स के लेक्चर में भी क्लियर हो जाने। सो वी हैव एस डॉट लेंथ फंक्शन। एस डॉट लेंथ क्या काम करता है कि वी हैव एस वेरिएबल, तो एस डॉट लेंथ, तो लेंथ फंक्शन जो है, दिस फंक्शन हम एस डॉट, बिकॉज आई नीड, कैसे पता चलेगा अगर दो तीन स्ट्रिंग्स हैं मैं किस वाले स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ। फॉर दैट हम लिखते हैं जिस स्ट्रिंग की, अब अगर इसके बाद आप स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू एक्स वाई जी कुछ और लिख देते आप उस वाले स्ट्रिंग की लेंथ, तो आप एस टी आर डॉट लेंथ, तो दिस इज बेसिकली लिंक्ड विद दिस कि एस डॉट लेंथ, दैट मीन्स कि ये मुझे बताएगा कि ये जो एस स्ट्रिंग है इसकी लेंथ। सो अब ये क्या है, हमारे पास आउटपुट क्या शो होगा, ये जब कैलकुलेट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, सो बेसिकली 14 है। नाउ आई नीड वाई 14 काउंट मैनुअली, अगर मैनुअली काउंट करें समर में हमारे पास 6 आ गए, देन वी हैव स्पेस, then we have off of 2, then we have space 20 23 और 4, तो टोटल करके 14। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि इस स्ट्रिंग में डबल डबल कोट्स आ जाए तो स्पेसेस आर आल्सो काउंटेड। ये इम्पोर्टेंट है, फूड फॉर थॉट के आपको ये कहाँ पर हमारे पास, अगर रियल लाइफ इसकी एप्लीकेशंस देख लें कि ये कहाँ पर काउंट होता है, तो दिस इज बेसिकली यूज वेयर पासवर्ड लेंथ वैलिडेशन हो या इनपुट वैलिडेशन जब फॉर्म्स में हो, तो वो उसके अगेंस्ट ये काम आता है, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन भी आ सकते। देन वी हैव स्वैप फंक्शन, अनदर फंक्शन, बारी बारी हम यूज करें, आप इसे समझेंगे कि क्या कैसे काम करें। स्वैप, वैसे आपके जहन में क्या होगा कि स्वैप क्या काम करता है? स्वैपिंग तो सर वर्ड, एक जी जी, एक के कंटेंट दूसरे में चेंज कर देता हूँ। ग्रेट, exchanging value of two strings. So we have another function जो कि built in है, हमने just यूज करना है। हमने क्या करना है, लाइब्रेरी यूज करनी है और देन उस फंक्शन को जो है फंक्शन को एज इट इज यूज करना है। सो स्टेप बाय स्टेप इसको भी देखें। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि आप लोगों का कंसर्न होता है, पूछते हैं फॉर इंस्टेंस कुछ स्ट्रिंग्स आ जाए, मैं बताऊं कि यूजिंग दोज, या इस तरह क्या आ जाए कि आउटपुट क्या होगा, डिफरेंट फंक्शंस मैंने यूज किए, या आपको एक बेसिक आ जाए कि इस तरह की आपकी स्ट्रिंग्स आप क्यों आप डिफरेंट ये फंक्शंस यूज करें, लेंथ का फंक्शन, स्वैप का फंक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अभी तक हमने लेंथ का भी देख लिया विद आउटपुट, अब स्वैप का भी देख रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अगेन टेलिंग कि फिर आप लोग लास्ट में पूछते हैं तो वाई नॉट केबी से गौर से जो लेक्चर्स लेते हैं उन्हें आइडिया हो। We have hash include IOStream, we have hash include string using namespace string, then we have main function. Main function में again this is जिस तरह मैंने बताया कि data type variable name followed by the value। तो अगेन वैल्यू आपकी जो है, दोबारा रिपीट करता हूँ कुछ चीजें ताकि आपको पता हो कि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स में भी कर सकते हैं, इक्वल टू के बाद डबल कोट्स में भी कर सकते हैं। Now what I am having here is string s underscore 1. Is this very valid identifier s underscore 1? True that, because as I told कि ये हमारे पास underscore letters digits के combination हो सकते हैं। So one, I have a string s underscore 1 which is having the content summer of 2023. Then I have another string which is s underscore 2 having a content all of 2020. So we have two strings. One is s underscore 1 string 1 and the other is s underscore 2 which is string 2. Now मैं function apply करना चाहता हूँ swap s1 with s2, इन दोनों को आपस में exchange कर दें। तो after swapping क्या होगा कि s1 will be having a contents of s2 and s2 will be having a contents of जो हमारे पास content है of s1।
जो नॉर्मल रियल लाइफ एनालॉजी अगर इसकी देख लें तो उसमें टू स्टूडेंट्स अगर मैं एक्सचेंज कर देता सीट्स इन अ क्लासरूम, ये उसके प्रैक्टिकल यूजेस में अगर देख लें, इफ़ वी वांट टू सॉर्ट सम डेटा, रीअरेंज वैल्यू, टेम्परेरी रिप्लेस करते हैं, सो अगर व्हाई नॉट मैनुअली मैं असाइन करूं वैल्यूज को, उसके इश्यूज क्या है? बिकॉज वी विल बी नीडिंग मोर लाइंस ऑफ कोड, हायर चांस ऑफ एरर, तो स्वैप फंक्शन जो है वो एफिशिएंट और क्लीनर है। नाउ आफ्टर स्वैपिंग फंक्शन, अगर बिफोर स्वैपिंग सी आउट करते दैट वुड बी डिफरेंट। आप कर लें, एक प्रैक्टिस कर लें कि इस वाली लाइन को बिफोर स्वैपिंग कर लो, आफ्टर स्वैपिंग कर। आफ्टर स्वैपिंग अब क्या होगा कि सी आउट एस अंडर स्कोर वन सेमीकोलन फुल कॉलन, जो कि एज इट इज प्रिंट होगा एस अंडर स्कोर वन की वैल्यू विच इज नाउ एक्सचेंज विद एस अंडर स्कोर टू। तो एस अंडर स्कोर टू जो है उसके साथ, तो एस अंडर स्कोर टू का कंटेंट थे फॉल ऑफ 2020, तो नाउ एस अंडर स्कोर वन में फॉल ऑफ 2020 आ जाएगा। सेम गोज फॉर एस अंडर स्कोर टू। एस अंडर स्कोर टू में हमारे पास क्या आ जाता है, जो कि एस अंडर स्कोर वन की कंटेंट है आफ्टर दिस स्वैप फंक्शन, वो आ गया। तो ये आप जो है वो कर भी लें प्रैक्टिस भी, कि कैसे आपने इसको अगर बिफोर कर दें और आफ्टर, हमने लेंथ का प्रैक्टिकल कर दिया और स्वैप का कर दिया, दोनों के बता दी। देन वी हैव नाउ वी मूव टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज साइज। हमने लेंथ स्टार्ट में डिस्कस किया था और हमने कहा था साइज भी। So size, at first glance, it looks different from length, but here is the key point. Size and length do exactly the same thing. कैसे? स्ट्रिंग एस हमारे पास जो है, वी हैव हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये तो ऑलमोस्ट ये याद कर लें, जब स्ट्रिंग के साथ आपने करना हो तो ये लाजिम व मलजूम है इसको याद करना। मेन फंक्शन में स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू समर ऑफ 2023 एस डॉट साइज, तो ये हमने अगेन कहा कि ये 6 की लेंथ है, स्पेस इज 7, देन 2 आ गया 9, देन space 10, and then 4. Output will remain the same. So then why do we have two functions for the same purpose? Anything? ये बेसिकली हिस्टोरिकल और डिजाइन रीजंस हैं C++ में। अब some programmers prefer size, s dot size, some others prefer length. So बेस्ट प्रैक्टिस आप लोग क्या करते हैं, यूज आइदर वन कंसिस्टेंटली, अगर यूज करना है एक ही को यूज करें, या साइज या लेंथ को कंसिस्टेंटली। Like real life analogy, it's like saying कि length of a road या size of a road, both communicate similar meaning in context. और ये कहाँ पर यूज होता है कि अगर हमने चेकिंग इनपुट साइज करना है, लिमिटिंग कैरेक्टर करना है, यूजर नेम मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, थिंग्स लाइक दैट, तो इसका ये। तो हमने क्या किया, लेंथ कर दिया, लेंथ और सेम साइज इंटरचेंजेबली, मैंने एग्जांपल भी दिया है जहाँ हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ रोड और हम कह सकते हैं साइज ऑफ अ रोड। प्रोग्रामर्स या ये यूज करते हैं या वो यूज करते हैं, बट अगेन टेलिंग कि अगर आपने इनमें से जो भी यूज करना है, बट आपने उसमें कंसिस्टेंट रहना है। दैट मीन्स कि वही आपने थ्रू आउट यूज करना है, और मैंने बता दिया कि अगेन ये यूज होता है, सेम मीनिंग्स है, कम्युनिकेट सिमिलर मीनिंग, बट इनपुट साइज चेक करने के लिए या लिमिटिंग कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज resize function. So now we explore a very interesting function which is resize function. ये क्या करता है, दिस फंक्शन एज आई टोल्ड अर्ली, स्टार्ट में मैंने कंपेयर और रीसाइज ये स्टार्ट में यूज किया था कि रीसाइज क्या करता है, दिस फंक्शन चेंजेस द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब हाउ वी हैव अगेन दोस हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, मेन फंक्शन में आते हैं। we have string s is equal to summer of 2023. We have a variable s और वैल्यू हमारे पास समर ऑफ 2023। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इट इज s डॉट रीसाइज एंड यू नीड टू मेंशन कितने लेटर्स डिजिट्स जो भी लेंथ हो वो, तो मैंने मेंशन किया s डॉट रीसाइज एंड 3। सी आउट करें और सी आउट नाउ s को करें। आफ्टर यूजिंग दिस फंक्शन s की स्ट्रिंग को मैंने रीसाइज कर दिया और फर्स्ट 3। Now what happened here? Original string was summer of 2023. After resize of 3, we have sum. So क्या कैसे करता है या क्या करता है? So it trims the string if the new size is smaller.
अगर ज्यादा हो तो ये वही करता है, बट अगर स्मॉलर हो तो ये ट्रिम कर देता है. So if we increase size, it adds extra characters, usually null or default character. अगर इससे लेंथ फॉर इंस्टेंस 14 से 18 कर दूं तो ये ऐड करता है एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, यूजुअली नल या डिफॉल्ट. अच्छा, इसको हम अगर रियल लाइफ में करें तो थिंक ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस एंड देन सेइंग ओनली कीप फर्स्ट 3 लेटर्स. तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यूज इसका कहाँ होता है कि लिमिटिंग डिस्प्लेड टेक्स्ट, उसको प्रीव्यूज या यूजर नेम आपका कहाँ पर छोटा आ रहा है, आपने बहुत लंबा लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग आउटपुट के लिए. सो व्हाट विल हैपन इफ वी रीसाइज टू 0? क्या होगा अगर मैं रीसाइज टू 0 कर दूं? स्ट्रिंग बिकम एम्प्टी. आपको आवाज तो आ रही है? बोल लें, गलत बोल लें, बट आप लोग बेसिकली इनपुट दिया करें, ठीक है? सर ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगी. एग्जैक्ट एम्प्टी होगा, कुछ भी नहीं होगा. तो 3 मीन्स कि हम SUM ये प्रिंट कर दिया. अच्छा, तो हमने कौन कौन से फंक्शन किया? क्विक रिकैप. हमने लेंथ, स्वैप, साइज और एस डॉट रीसाइज किया, और इन ब्रैकेट्स में हम लेंथ बता देते हैं, और अगर ज्यादा बता दें तो वो ऐड करते हैं. अच्छा, सर नेक्स्ट इन द अगर ये लिस्ट. इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की, अगर हम उससे ज्यादा लिख दें, मतलब अगर इसकी 14 है और हम 15 लिख दें. हाँ, वो मैंने बता दिया, वो नल कैरेक्टर्स आपको ऐड अप होंगे, ठीक होगा. उसके साथ नल कैरेक्टर जो कि शो नहीं होते, तो या कोई भी इस तरह के कैरेक्टर्स हमारे पास जो है, नल कैरेक्टर्स या डिफॉल्ट कोई कैरेक्टर्स जो ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, वो आप देख लें, आपके पास वही स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, बिकॉज नेक्स्ट को वो रिप्लेस कर देता है या स्पेसेस या नल कैरेक्टर्स के साथ. बट अगर छोटा लिख लें तो वो स्टार्ट से लेके उतने साइज का कर दें. फाइंड. So another powerful function. So now we move to a very powerful function which is find. ये function use होता है to search inside a string. If I need to search anything within a string, तो ये हम. So example is string s underscore 1, which is summer of 2023, and we have string s underscore 2, which is true. सी आउट क्या करते हैं, S1 डॉट फाइंड S2 को फाइंड करें. सो आउटपुट क्या होगी? द फर्स्ट ऑकरेंस के फर्स्ट जहां पर ये फाइंड हुआ था वहीं पे, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो हमारे पास द सब स्ट्रिंग 2 इज फाउंड एट इंडेक्स 10, बिकॉज 10 का ये मतलब है कि इंडेक्स 10 पे. Important concept, because we know that indexing starts with from 0 and so on. So position is 10. So it is like searching a word in a paragraph. The function tells you where it starts. तो ये सर्च फीचर्स हम जो एप्स में सर्च फीचर्स देखते हैं वहाँ यूज होता है. हम फाइंड करते हैं कोई कीवर्ड विद इन सम टेक्स्ट, डेटा वैलिडेशन. अच्छा, व्हाट इफ सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड? कोई मैं ऐसे वैल्यू दे दूं, 4 दे दिया, तो अगर ना फाउंड हो तो फिर क्या होगा? नल होगा सर. हाँ, तो इस केस में हमारे पास ये आप लोग करेंगे तो इट रिटर्न्स अ स्पेशल वैल्यू दैट इज स्ट्रिंग और डबल कोट्स एंड पॉज. तो ये हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू को बता देगा कि ये नहीं फाइंड हुआ, नॉन पोजीशन. तो ये हमारे पास ये भी है. और इसमें जिस तरह आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि इस लोकेशन में भी है, इस लोकेशन में भी, अगेन टेलिंग कि अगर 2 लोकेशंस पे है, फर्स्ट ऑफेंस पे ये वो फाइंड कर देगा कि 2 जहाँ पे वो हुआ था. अच्छा, पुश बैक, another feature. Now we look at push back. This function is used to add characters at the end of the string. पुश करते हैं at the back of the string. Example logic करते हैं. तो फॉर इंस्टेंस हमने लाइब्रेरीज ऐड की यूजिंग नेम स्पेस std. यहाँ पर आप देख लें सिंटेक्स मैंने थोड़ा चेंज किया इंटेंशनली, इक्वल टू के बजाय मैंने ये किया. सो यू कैन यूज दैट एंड दैट एज वेल. तो स्ट्रिंग S1 में समर ऑफ 2023
S3 और स्ट्रिंग S2 में मेरे पास डबल कोट्स के बाद वी हैव अ कॉमा इन क्लास जो स्ट्रेंथ है 26। सो अब क्या है कि सी आउट ओरिजिनल स्ट्रिंग, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग बिफोर हम अपेंड करें S1। नाउ फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, S अंडरस्कोर 2 ऑफ I नॉट इक्वल टू, जब तक इसे \0 जो नल कैरेक्टर या लास्ट कैरेक्टर नहीं मिलता I++। ये क्या करता है, ये इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है फर्स्ट। और ये फंक्शन आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, विच इज किस स्ट्रिंग के बाद आपने किस स्ट्रिंग को अपेंड करना है विद यूजिंग लूप्स। यूज अगेन बता रहा हूँ कि S2 ऑफ I हमारे पास है नॉट इक्वल टू \0 until and unless ये लास्ट कैरेक्टर तक नहीं जाएगा, नल कैरेक्टर तक ये जाए पुश बैक करता जाएगा एक एक चीज को। तो अच्छा, इसको यूज करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, what is happening here, we are taking each character from S2, एक एक कैरेक्टर को, and we add it to S1। सो हमारे पास पुश बैक क्या करता है, बेसिकली ऐड करता है हर एक कैरेक्टर को एट अ टाइम, एट अ सिंगल टाइम। तो हमारे पास क्या होगा, द फंक्शन इज पुश बैक, बट कैसे, S_1 इसको अगर S_1 के बजाय S1 कर दें तो S1 यहाँ S1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एज इट इज आपने लिखना है, जो फंक्शन जिस तरह है एज इट इज। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, S_2 जो सेकंड है उसको नंबर बाय नंबर पुश बैक, अगेन टेलिंग ये पॉइंट, ये ऐड करते ये फंक्शन एक कैरेक्टर को एट अ सिंगल टाइम। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग लूप। लूप चलते हैं कि स्टार्ट से कॉमा से लेके, और ये एक एक कैरेक्टर को ऐड करेंगे जब \0 मीन दैट \0 टेल्स मी कि इट्स द एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग कैरेक्टर। सो ये अब क्या करेगा कि आफ्टर पुश बैक S1 नाउ, this is was before pushing back original string, this was after push back कि ये loop यूज किया। so output will be original string, मैं साथ में डबल कोट्स में इस वजह से ओरिजिनल स्ट्रिंग कि आपको डिफरेंस पता चले। ओरिजिनल स्ट्रिंग S1 जो कि अभी फिलहाल कोई चीज उसके साथ ऐड नहीं हुई, पुश बैक नहीं हुई, S1 which was summer of 2020। आफ्टर पुशिंग बैक दिस फंक्शंस यूज करने के बाद फिर क्या होगा, आफ्टर पुश बैक डबल कोट्स में आफ्टर पुश बैक मैं लिख रहा हूँ और S1, नाउ S1 विल बी होल्डिंग अ वैल्यू S1 और एडेड विद S2 के जितने कंटेंट्स हैं, सो इट विल बी समर ऑफ 2023 और कॉमा क्लास ऑफ स्ट्रेंथ। सो हमारे पास ये की कंसेप्ट अगेन रिमेंबर कि पुश बैक ऐड करते हैं वन कैरेक्टर, दैट्स व्हाई वी यूज लूप। सो रियल लाइफ में अगर देखें, लाइक टाइपिंग अ मैसेज लेटर बाय लेटर ऑन अ कीबोर्ड, एक एक हम ऐड करते हैं, टाइप करते हैं, तो वो साथ में अपेंड होता है वो प्रीवियस स्ट्रिंग के साथ। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल यूज के अगर स्ट्रिंग्स को डायनामिकली बिल्ड करें, रीड करें इनपुट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर, बट वो हम क्यों नहीं यूज कर सकते, वी कैन, बट हम पुश बैक ज्यादा कंट्रोल देता है और इट इज यूजफुल, सो ये एक और भी। अच्छा, नाउ टेल मी अबाउट पॉप बैक। पॉप बैक क्या करेगा, बिफोर गोइंग टू दैट, पॉप बैक से क्या होगा। सर वो पहले वाले स्ट्रिंग के स्टार्ट में ले जाएगा दूसरे स्ट्रिंग को। अच्छा, पॉपिंग वैसे किसे कहते हैं। अच्छा, इनपुट आ रही है, आई मस्ट अप्रिशिएट एंड आई शुड अप्रिशिएट कि आपका क्या है कि पुश बैक तो बैक साइड पे, पॉप पॉप अप क्या करता है, अप क्या हो, इज इट रिमूवल और एडिंग, दोबारा से रिमूवल है। रिमूवल है। सो अगर ये हम सिर्फ रिमूवल है। exactly good getting that, pop back, so now the opposite of push is pop, that means कि pop underscore back is used, this function basically removes the last character of a string, जो कि लास्ट कैरेक्टर है उसको पॉप कर देता है। एग्जाम्पल इज कि हमारे पास अगेन दीज लाइब्रेरीज एंड वी हैव स्ट्रिंग s which is equal to summer s dot pop back, सी आउट करें s को, इस स्ट्रिंग को, तो इससे हमने एक फंक्शन आप 4 दफा करेंगे तो क्या होगा, अगर s डॉट पॉप बैक s डॉट पॉप बैक s डॉट पॉप बैक s डॉट पॉप बैक 4 दफा करूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट।
सर कैरेक्टर वाइज एंड से एस 1 बाय 1 पीछे जाता जाएगा, हाँ तो दैट मीन्स कि रिमूव ये होता जाएगा। हाँ एग्जैक्टली और फिर मैं उसे सर आउटपुट करूँ पॉप तो बैक की पैरेंथेसिस में अगर हम इसके वो लिख देते हैं 5 लिख देते हैं तो ये एक साथ 5 कैरेक्टर्स को रिमूव कर लेगा कि नहीं? ये आप जरा कर लें, ट्राई कर लें कि करता है या नहीं करता। ये थोड़ा सा अगर आप खुद 4 बार चलाएंगे तो एस यू आंसर आएगा। एस यू आंसर आएगा 4। जो आप बता रहे हैं 4 कि बार अगर मैं चलाना हमें जरूरी होगा सर, एक बारी में नहीं हो सकता? यही ये पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंटर कि जिसने कहा है कि 5 वो चेक करें 5 के साथ होता है, अगर नहीं होता तो ब्लैंक के साथ अगर मैं 4 दफ़ा मैनुअली करूं व्हाट विल बी द डिफरेंस। ये थोड़ा ट्राई भी कर लें। अच्छा है कि जो क्लास में एक्टिव है वो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करें तभी मुझे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, now what happened in this case, last character R is removed. A real life analogy हम कहते हैं कि like pressing backspace while typing. हम एक दफ़ा backspace press करते हैं, अगर मैं manually 4 दफ़ा backspace press करूँगा तो क्या आएगा। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी क्या है कि ये अनडू करता है जो लास्ट इनपुट कैरेक्टर है, रिमूव करता है अनवांटेड कैरेक्टर्स, ट्रिम करता है डिक्टिंग। व्हाट इफ आई एक क्वेश्चन ये मेरा होना था जो कि आप लोगों ने पूछ लिया कि मैं इसमें अगर पॉप बैक जिस तरह मैं लास्टली करता हूँ पॉप बैक में अगर मैं कोई डिजिट एक ये क्वेश्चन आपने एक व्हाट इफ आई से कि पॉप बैक एम्प्टी स्ट्रिंग पे मैं करूँ तो क्या करेगा। तो ये दो आंसर्स चलें ये मैं बता दूं कि इट कैन कॉज एन एरर एंड डिफाइंड बिहेवियर बट इन दोनों को आप प्रैक्टिस करें तो ऑलवेज इंश्योर कि स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी बिफोर यूजिंग इट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ एरर। तो ये हम इस तरह करते हैं। नाउ वी गोइंग टूवर्ड्स क्लियर। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन क्लियर और पॉप बैक। क्लियर क्या जहन में आ रहा है क्या करेगा। सर टोटल रिमूव कर देगा वो। टोटल क्लियर कर देगा कंटेंट को। गुड। अच्छा सो ये हमारे पास के नाउ वी मूव टू क्लियर। क्लियर जो है डॉट क्लियर तो दिस फंक्शन इज यूज टू रिमूव ऑल कंटेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। एक और फंक्शन है तो एग्जांपल हमारे पास हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी मेन फंक्शन में आते हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू समर ऑफ 2023 एस डॉट क्लियर। ठीक हो गया। अब एस डॉट क्लियर सी आउट एस और डबल कोट्स में वेरिएबल एस इज क्लियर्ड ऑफ। ये सिर्फ यहाँ शो करना होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये प्रिंट करेगा कुछ भी नहीं होगा। डबल कोट्स में मैं इस वजह से करना चाह रहा हूँ कि आपको बता दूं कि वेरिएबल एस जो है वो क्लियर हो गया जो भी उसमें था। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव ऑल कंटेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। So where s is cleared. So basically the string originally had data, you can just see. After clear, it becomes empty. So the variable s still exists, although it exists, only its contents is removed. So अगर real life में देखें like erasing everything written on a whiteboard, the board is still there but nothing is written over it. प्रैक्टिकली अगर देख लें तो रीसेटिंग इनपुट फील्ड्स को रीसेट कर देते हैं, रीयूजिंग वेरिएबल्स कर लेते हैं, वेरिएबल्स को दोबारा रीयूज करके उसमें वेरिएबल का मतलब भी ये है कि उसमें दोबारा से वी कैन गेट सम सेंसिटिव डेटा लाइक पासवर्ड्स। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लियर और रीसाइज अगर मैं 0 कर दूं। रीसाइज हमने स्टार्ट में किया था ना कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर यहाँ पर हम रीसाइज 3 किया था तो 1 2 3 सम। बट क्या डिफरेंस होगा कि अगर क्लियर करूं या रीसाइज और 0 कर दूं। सर क्लियर में जो होता है वो टोटल रिमूव हो जाता है और आपको नया उसको देना पड़ता है आउटपुट। और उसमें दूसरे में ये होता है कि उसमें जो जो आपने टेक्स्ट पहले दिया हुआ होता है उसी में से आ जाता है Like for instance रीसाइज में। point of saying is s dot clear मैंने किया, मैं फिर से आउट कर रहा हूँ s ठीक हो गया यहाँ पर। now if I do s dot resize और स्मॉल ब्रैकेट्स में 0 दे दूं कि रीसाइज करें 0 तक। 0 का मीन्स कि वो कुछ भी नहीं है। 1 करूंगा तो फर्स्ट लेटर s करेगा तो 0 मीन्स नथिंग। डिफरेंस आएगा आउटपुट में अगर s करूं या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस
जो कि मैं लेक्चर्स के अंदर भी एम्बेड करके पूछता हूँ। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट फॉर अ नंबर और सो इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, both will work same, both will make string empty, but basically clear जो ये है that is more explicit. डिफरेंस हम दोनों क्यों यूज करें? रिसाइज में मैं रिसाइज कर सकता हूँ 1 2 3 4 एनी नंबर तक। क्लियर वाइस वर्सा क्लियर क्या करता है? क्लियर इंटायरली कंटेंट्स को क्लियर कर देता है, तो दोनों इंटरचेंजेबल तो यूज नहीं हो सकते। बट इफ आई से कि s डॉट resize of 0, so it will work at s डॉट clear, बट क्लियर ज्यादा एक्सप्लिसिट और रीडेबल है, तो इस वजह से हम क्लियर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो यूज भी कर सकते हैं। There are some positions या some portions जहां पर हम एक को दूसरी की जगह यूज कर सकते। another substring। अच्छा, what will substring do? स्टार्ट में मैंने ये भी इनिशियल वो कंपेयर सबस्ट्रिंग रीसाइज स्टार्ट में अगर इफ देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ साथ में बताया भी था। सबस्ट्रिंग क्या करता है? मैंने कहा था ये एग्जांपल में आएगा। सबस्ट्रिंग किस लिए यूज होता है? सर किसी स्ट्रिंग का हाफ करना हो तो सबस्ट्रिंग हो एग्जैक्टली गई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि दिस फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग के स्ट्रिंग का पार्ट, पोजीशन या पार्ट। So now we will be looking towards another useful function कि हमारे पास we have string s underscore 1 sum of 2023. How it is used? In that case we are using a s underscore 1 dot again this function will be used as it is as sub str. Then we have 0 or comma or 6. ठीक हो गया? What does that mean? 0 से 6? सर सिक्स उसकी इंडेक्स तक जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट आउट कर देगा। 0 इंडेक्स से 6 इंडेक्स सर तक 0 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स से। exactly 0 से 6 index. So what will be the output? समर आ Summary. जाएगा। के कीवर्ड प्रिंट आउट हो जाएगा। समर के Summary साथ एक is out. स्पेस भी आएगा सर। ठीक हो exactly 6 कीवर्ड तक समर के साथ एक स्पेस भी आएगा। पॉइंट इज दैट एक्सप्लेनेशन अगर इसकी करें तो 0,6। अच्छा, व्हाट इफ आई से 3 to 6? फिर क्या होगा? तो सर MER और एक स्पेस आ जाएगी। MER 0 1 2 3। so this is the reference कि हम किसी भी सबस्ट्रिंग what we need to do कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग बताएंगे। सो कैरेक्टर्स जो कि हमारे पास इंडेक्स 0 से 6 तक थे वो, तो हम इसको बेसिकली फॉर्मेट इसका क्या होता है याद करें, पता होना चाहिए कि कैसे आपने फॉर्मेट। सबस्ट्रिंग की बात आई तो हम एक लेंथ को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स और लेंथ बता देते हैं कि कहाँ तक। so starting index is ये थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट इज नॉट बेसिकली एन इंडेक्स बट अगेन कि अगर समर स्पेस इसमें आ गए तो, बट ये हमें क्या बताता है बेसिकली, अगर थोड़ा सा ब्रॉडर में बता दूं, इट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स। कहाँ से स्टार्ट होता है? दिस इज नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास लेंथ है जहां तक हमने जाना है। तो इस केस में समर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट व्हाट इफ आई से कि 3 से 6 कर दें, so what will be the case? मैंने MER आप लोगों ने लिखा है, मैंने भी उस टाइम आपको कहा है, लेकिन ट्विस्ट था, मैंने कहा कि थोड़ा एंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो MER के साथ स्पेस एंड OF भी होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली C++ में क्या होता है कि वी हैव द फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स एंड द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लेटर्स। ये लिखने अपने पास मैं कैसे आप लोगों को बता दूं, बट द सिंटेक्स इज सबस्ट्रिंग। यहाँ पर हमारे पास सब जो स्टार्ट इंडेक्स है दैट इज द लेंथ। सो लाइक कॉपिंग अ पोर्शन फ्रॉम अ टेक्स्ट और पैराग्राफ, तो एक्सट्रैक्टिंग अ फर्स्ट नेम फ्रॉम फुल नेम हम ये भी कर सकते हैं। गेटिंग योर डोमेन फ्रॉम ईमेल, पासिंग स्ट्रक्चर डेटा। अच्छा, व्हाट इफ आई गो बियॉन्ड स्ट्रिंग लेंथ? फिर क्या होगा? फॉर इंस्टेंस मैं 10 से स्टार्ट करके और 6 लेंथ तक देखना चाहता हूँ, तो ये 10 से स्टार्ट होके 4 लेंथ होगी तो 6 लेंथ, तो फिर क्या करेगा?
और उसमें भी ब्लैंक स्पेसेस आएंगी। एग्जैक्टली सेफली रिटर्न करेगा अवेलेबल जितने कैरेक्टर्स होंगे दो, नो क्रैश, बट सेफली रिटर्न करेगा अवेलेबल को। अच्छा, इस दरमियान में ये मैं अपलोड करूंगा, तो कुछ क्वेश्चंस और पॉइंट्स अपने साथ याद करने पेपर पर्सपेक्टिव से, क्वाइट इंपॉर्टेंट ये। साथ साथ में कुछ साथ में हर एक पे एक एंड में क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये करूँ तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से। कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द आउटपुट, तो सेफली रिटर्न करेगा अवेलेबल कैरेक्टर्स आएंगे। कंपेयर, कंपेयर क्या करता है, ये भी स्टार्ट में मैंने कंपेयर, इफ यू रिमेंबर यहाँ पर मैंने सब स्ट्रिंग कंपेयर इरेज, तो कंपेयर क्या करता है? सर सर दो तो स्ट्रिंग वैल्यूज कंपेयर करता है। करके उसका इंडेक्स Exactly. रिटर्न करेगा। इंटीजर रिटर्न करेगा, राइट, ये बताया था। गुड। This function is used to compare two strings as I told. Now again देखें, string s underscore 1 string to match s underscore 2 same to same, मैंने string to match लिखा हुआ है। सी आउट string 1 डबल कोर्स में ये एज इट इज प्रिंट होगा। जिन लोगों का इशू है वो दोबारा ये सुन लें कि string underscore 1 will be printed as it is before of double quotes and then we have s underscore 1. What will be the output in this case? string 1 प्रिंट होगा एंड string to match s1 में जो डेटा है वो प्रिंट होगा। देन वी हैव एंड एल, ये वैसे न्यू लाइन में स्टार्ट होगा बट ड्यू टू स्पेस मैंने एंड एल string underscore 2 और s2 के कंटेंट्स जो हैं वो कंटेंट इज string to match वही प्रिंट होगा। नाउ मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। नाउ लुक एट, ये मैंने जिस तरह बताया कि ये आपको कंपेयर करेंगे और इंटीजर्स फॉर्म में हम देखते हैं। इंट कंपेयर s underscore 1 डॉट कंपेयर s underscore 2, दोनों के लेंथ को, तो ये इंटीजर की फॉर्म में कंपैरिजन होगी। अगेन रिपीट, लेंथ को कंपेयर किया जाएगा। इफ CMP जो हम यूज करते हैं कंपैरिजन डबल इक्वल टू 0, इट विल शो दैट S1 को कंपेयर कर रहे हैं, S1 की लेंथ को पहले काउंट किया फिर कंपेयर किया S2 की लेंथ को। both the input strings are equal, compare is equal to 0 because इसने काउंट करना है strings are equal, ये हो जाएगा। else if compare is less than 0 because S1 को कंपेयर करूं तो इसके लगे 13 तक लेटर्स होते हैं, ये 15 तक होते, तो अगर ये इसके जो 13 is less than 15 तो डिफरेंस जो है वो लेस देन 0। इन दैट केस हम क्या करते हैं कि S1 is smaller as compared to S2, string 2 हम कह सकते हैं। तो 3 हमारे पास कंडीशन हो। थर्ड अगर ना भी लिखे, कंपैरिजन इज ग्रेटर देन, इसकी लेंथ ज्यादा हो और 0 से ज्यादा कंपैरिजन आ रहा हो, सो इन दैट केस क्या होगा कि string 1 इज ग्रेटर देन। तो हमारे पास अगेन रिपीट करता हूँ, कंपेयर हमने यूज किया और कैसे इसका यूज है, हमने स्ट्रिंग्स को बिफोर कंपैरिजन प्रिंट किया, फिर हमने कहा कि CMP इज इक्वल टू इस फंक्शन को किया है कि s अंडरस्कोर 1 डॉट कंपेयर s अंडरस्कोर 2। हम CMP यूज किया हुआ है, CMP के बजाय आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मेन फंक्शन जो यूज हम कर रहे हैं दैट इज कंपेयर। किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? CMP के बजाय अगर आप C भी लिख दें तो यहाँ पर इफ C इज इक्वल डबल इक्वल टू और वो भी कर सकते हैं। CMP के बजाय कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो मेन फंक्शन आप लोगों ने गलत नहीं करना, अगर आप पेपर में कहें कि हम मैंने तो CMP यूज किया हुआ है, so again telling कि CMP is basically a variable of data type integer जिसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जिसको मैं फंक्शन दे रहा हूँ S1 डॉट, और इस वेरिएबल को मैं कंपेयर कर रहा हूँ विद द वैल्यूज बिकॉज इंटीजर है। अगेन टेलिंग के इंटीजर के शेप में वो काउंटिंग भी करेगा, दैट्स व्हाई। सो अब क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर दीज थ्री, इफ एल्स इफ और एल्स, क्या आउटपुट आएगा? Because comparison will be 0, so both the inputs are equal because same length hai, so the output will be this one. So comparison is based on ASCII values as हम जो lexicographic order कहते हैं। So like dictionary ordering apple comes before banana,
तो इस तरह से अगर ऑर्डर करना चाहते हैं या प्रैक्टिकल सॉर्टिंग स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना चाहते हैं, वैलिडेटिंग इनपुट, मैचिंग पासवर्ड, दो पासवर्ड्स को जो आप इनिशियल पासवर्ड देते हैं या दूसरा आपसे कंफर्म पासवर्ड कहते हैं तो उनको, सो व्हाई not use double equal to operator? So we can use double equal to operator as well, but compare gives more detailed control. ये again points है to remember कि वो भी use कर सकते हैं. स्टार्ट में हमने सर एक और भी यूज किया जी. सर आपने इसका बोला था कि इसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो एज इंटीजर होगी, तो इसमें तो इंटीजर कहीं पे नहीं हो रहा उसमें आउटपुट में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लेट मी रिपीट, वो मैंने पॉइंट्स में बता दिया लेकिन क्लियर कर दूं. वैल्यू जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वैल्यू शुड बी एज एन इंटीजर, कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर एंड रिटर्न द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. व्हाट डज दैट मीन? कि हाँ हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद हमारे पास, क्योंकि यहाँ भी नंबर्स होंगे, काउंटिंग होगी, यहाँ भी काउंटिंग होगी, कंपैरिजन होगा. कंपैरिजन हमारे पास इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, कि कंपैरिजन अगर फॉर इंस्टेंस माइनस होगा, इसके डिजिट्स माइनस दिस वन, तो अगर ये 13 है ये 15 है तो कंपेयर करने के बाद ये -2 होगा. अगर दोनों की इक्वल है, इसकी लेंथ 14 है, इसकी लेंथ 14 है, तो कंपैरिजन के बाद जो डिफरेंस है 14 - 14 विल बी 0. इसके 16 है, इसके 14 है, कंपैरिजन के बाद +2. अब ये जो कंपैरिजन के बाद हमारे पास आएगा तो ये हमारे पास अगेन टेलिंग कि ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा दैट विल बी इंटीजर, आइदर -2 या 0 या +2. तो फॉर दैट पर्टिकुलर केस हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ये कंपैरिजन के बाद रिजल्ट आएगा दैट इज विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. सीएमपी को फिर जब हम कंडीशन चेकिंग करते हैं कि यहाँ देखते हैं कि जो वैल्यू है वेदर इट इज 0, इज लेस देन 2 और इट इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन, तो यहाँ पर जो हम इवन कंपैरिजन भी कर रहे हैं दैट इज आल्सो विद इंटीजर वैल्यू. जो आप यहाँ पर आउटपुट दे रहे हैं, जो रिटर्न कर रहा है दैट इज बेसिकली कि मैं जब अगर ये जब कंपैरिजन आ जाए, कंपैरिजन हो जाए, जो इनके डिफरेंसेस हैं, उसके बाद कुछ तो डिस्प्ले करूंगा. वो डिस्प्ले डबल कोट्स में एज इट इज है, दिस इज डिस्प्ले. बट जो प्रोसेसिंग हो रही है वो प्रोसेसिंग हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एन इंटीजर, और कंपैरिजन भी जितनी हो रही है इन टर्म्स ऑफ, तो ये इस वजह से मैं कह रहा था कि ये रिटर्न करेगा एज अ इंटीजर, not just your जो return ये कह रहे हैं, this is basically the output after the comparison. अच्छा, मतलब सर प्रोसेसिंग उसमें इंटीजर में हो रही है लेकिन हाँ आउटपुट इंटीजर में नहीं आएगा. एग्जैक्टली आउटपुट जो मर्जी आप लोग दे दें वो डबल कोट्स में एज इट इज, बट जो प्रोसेसिंग मेन आपकी हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स जो कैलकुलेशन हो रहे हैं. अच्छा, दैट्स नेक्स्ट वन इज जी जी कंपेयर करवाना हो फिर क्या करेंगे? दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को अगर कंपेयर करवाना हो, बेसिकली ये कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग 1 विद स्ट्रिंग 2, आप दो को कंपेयर कर, हाँ दो से ज्यादा करना चाहते हैं आप S1 कंपेयर S3 के साथ कर लें, S2 कंपेयर S3 के साथ कर लें. फॉर इंस्टेंस इफ डूइंग मोर देन, अब S1 को मैं कंपेयर करना चाहती हूँ एक से ज्यादा के लिए, तो मैं क्या करूँगा S1 डॉट कंपेयर विद S2, क्योंकि हम हमारी कंडीशन क्या होगी, हम कंपैरिजन करें उसको आपने एक और कंडीशन देनी होगी कि आप उसके साथ, तो आप एक के साथ तो डू, अगर फॉर इंस्टेंस S2 का स्ट्रिंग बड़ी S3 छोटी हो तो फिर तो ये सारी आपकी जो यहाँ कंडीशन है दैट बिकम्स फॉल्स. वो क्या क्या करेगा, सो रादर देन डूइंग दिस हम क्या करते हैं कि एक के साथ कंपेयर किया, उस पर जो कंडीशन लगे दूसरे के साथ कंपेयर किया, उसके लिए क्योंकि हम वेरिएबल भी चेंज करते हैं तो हम कर सकते हैं, बट मैनुअली हम एक से ज्यादा कर. erase function, erase the function is used to remove characters from a string, clear की तरह करते हैं. तो ये हमारे पास है string s है summer of 2023, we have s dot erase, output is basically an empty string. What happened, entire string content is removed. This version basically deletes everything, like deleting all text in document. So additional insight, erase can also remove specific parts. कि अगर हम चाहें कि सारी string जिस तरह क्लियर सारे कंटेंट्स को रिमूव कर देता है, इरेज क्या कर सकता है कि इरेज में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम स्पेसिफिक पार्ट्स को भी रिमूव या इरेज कर सकते हैं. रिमूविंग अनवांटेड डेटा, कोई अनवांटेड या कोई भी डेटा, आप अगेन
एक वहां पर आपको एक मैंने बता दिया था कि आपने करना है कि क्या 5 एंटर करना है। यहाँ पर अगर आप एस डॉट इरेज 5 करें तो आफ्टर इरेज मुझे बताएंगे क्या आएगा। ये 2-3 मैंने टास्क आप लोगों को दिए, तो ये आप ये भी कर सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट, नॉट जस्ट इंटायर स्ट्रिंग हम अगर करना चाहते हैं। तो अगर मैं कहूँ एस डॉट इरेज 5 क्या करेगा, तो क्या रिमूव करेगा, तो इरेज ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और बिकॉज ये पार्शियल डेटा, तो ये आपने मुझे बताना है। वैसे तो अगेन ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप ये 3-4 लाइन चैट जीपीटी को देख के भी इसमें एस डॉट अरेज 5 कर दें तो क्या देगा। तो ये तो आप इस पे भी कर सकते हैं, बट अगेन मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आप उससे कर लें। आप समझ लें कि अगर डिफरेंसेस क्या, और अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो ये कैसे कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत टास्किंग दे रहा हूँ, ये इस वजह से कि आप लोग थोड़ा सा खुद भी कर लें। तो इरेज बेसिकली मल्टीपल फॉर्म्स में यूज हो सकते हैं। बेसिक डिलीट आर कैरेक्टर्स के लिए, या स्टार्टिंग से इंडेक्स 5 तक अगर करना है। फॉर इंस्टेंस ये मुझे आप लोगों ने बताना है कि 5 तो ये स्टार्ट इंडेक्स से 5 इंडेक्स तक इरेज करेगा या लास्ट से लास्ट पार्ट इरेज करेगा। तो ये आपने इंडेक्स ब्रेक डाउन करके मुझे बताना है कि किस सर इंडेक्स से। सिर्फ फिफ्थ कैरेक्टर को नहीं इरेज कर सकता, फिफ्थ इंडेक्स को? नहीं, ये साइज हम बताते हैं, लेंथ। जिससे हम मैंने उधर बताया कि एक स्टार्टिंग इंडेक्स से लेंथ, इसी तरह ये आप इरेज बताएंगे 5। तो इरेज 5 दो दो हाँ, ये 2 ऑप्शन हो, एक तो कंप्लीट इरेज या 5। क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि वेदर इट विल रिटर्न SUMME, वेदर इट विल रिटर्न स्पेस 2023, ये मुझे बता दें। ठीक होगा कि आप क्या करते हैं बेसिकली एस डॉट रेट एंड देन वी मेंशन द पोजीशन कि किस पोजीशन तक आपने जाना। चलिए ये अगेन फिर कि फ्रॉम इंडेक्स टू दैट पोजीशन हम जाते हैं कि अगर मैं 5 कर दूं तो इंडेक्स से उस पोजीशन तक जाएंगे। बट ये वैसे बताना नहीं चाहिए था कि आप लोग तो written summer of 2023, like someone says remove everything starting from the 6th letter, तो आप ये क्या करते हैं कि इससे और इस 6 तक रिमूव कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह भी इरेज कर सकते हैं। तो इरेज क्या करता है, पहले केस में रिमूव करते हैं एंटायर स्ट्रिंग को, और सेकंड में इरेज 5 करूँ तो ये रिमूव करेगा फ्रॉम इंडेक्स 5 ऑनवर्ड। सो इनिशियल के अलावा जो पोजीशन हम बता ऑनवर्ड्स इरेज कर। बट अगेन टेलिंग क्वेश्चन के बजाय फोकस करें कि आप लोग खुद से प्रैक्टिकली इसको करके देख लें। एक ये तो चलो मैंने बता दिया, वो पहला आपने खुद करना है उसके लिए वो। तो हमारे पास लेट अस जस्ट समराइज व्हाट वी लर्न टुडे। टुडेज की लर्निंग वाज व्हाट इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या था वैसे, क्या चीज, कैरेक्टर्स। और और अल्फाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स कुछ भी हो सकता है। गुड। तो फर्स्ट हमने कहा था कि स्ट्रिंग्स क्या, देन हमने कहा कि स्ट्रिंग्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे हमने 2 वेज डिफरेंट, ये स्टार्ट में हमने डिफाइनिंग वेज किया था कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी अगर ना लिखें तो, अगर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखें तो। फिर उसके बाद हमने डिक्लेरेशन भी की थी कि डिक्लेरेशन में हमने 2 वेज, कौन कौन से वेज थे। डिक्लेरेशन में एक तो ये है ना, स्ट्रिंग एस स्मॉल ब्रैकेट्स में डबल कोट। सर एक इक्वल्स टू लगा के होता है और एक ये ब्रैकेट के अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा, नाउ थोड़ा सा क्विक रिकैप आप लोगों की जरूरी है कि क्विक रिकैप भी हो जाए। फंक्शंस जो हमने कवर किए जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, पहले हमने स्ट्रिंग, डिफाइनिंग स्ट्रिंग, डिक्लेरेशन एंड देन कमिंग टुवर्ड्स नंबर बाय नंबर। लेंथ क्या करता था, लेंथ या साइज, वो फंक्शन क्या करता था। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को देखते हैं टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे काउंट करके बता देता। सेम साइज हमने का इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन आपने कंसिस्टेंट। गुड आंसर। नेक्स्ट रीसाइज हमने यूज किया था। रीसाइज क्या करता है, कैरेक्टर्स को रिड्यूस।
रीसाइज हम करते हैं, रीसाइज थोड़ा सा साथ में, रीसाइज में रीसाइज 3 तो उसने क्या किया था कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। अच्छा, फाइंड क्या करता था, फाइंड फंक्शन एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग की कोई एक वो फाइंड करता एग्जैक्टली था, कोई एलिमेंट फाइंड करता था। लाइक हमने 2 को किया था तो वो पोजीशन बता दी कि किस पोजीशन पे। गुड, यही वो आपसे चाहिए प्रेजेंट परफॉर्मेंस। पुश बैक क्या करता था? सर वो सर एक बैकस्पेस एक कैरेक्टर को पीछे करते थे। यही यार यहाँ नहीं पुश बैक आगे कर देता सर, वो प्लस करता था वैल्यूज को। पुश बैक हम अगर कोई स्ट्रिंग किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ ऐड करना चाहते हैं एट द एंड वो कर देता है यूजिंग लूप। हमने कहा था कि ये S1 स्ट्रिंग है, ये S2 स्ट्रिंग है। हमारे पास क्या है कि यूजिंग लूप S1 के एंड में हम S2 को ऐड करें नंबर बाय नंबर, वो जो एक एक डिजिट। तो पुश बैक। पॉप बैक क्या करता था? सर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड पे सर रिमूव पॉप बैक रिमूव कर देता है। एग्जैक्टली लास्ट कैरेक्टर को रिमूव करना। और इस पे ये क्वेश्चन आपने करना है कि डॉट पॉप बैक अगर 5 कर दूं तो ये क्या आंसर देगा, क्यों देगा, उसको थोड़ा सा आपने करना है। ये मैंने ये बताया था। देन क्लियर, क्लियर हमने किया था कि कंटेंट को क्लियर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कंपेयर सब स्ट्रिंग हमने अगेंस्ट सब स्ट्रिंग किस लिए यूज हुआ था? स्पेसिफिक पार्ट एक उसमें से निकालने के लिए एग्जैक्टली, स्ट्रिंग में। दिस विल बी स्टार्टिंग इंडेक्स एंड दिस विल बी द नंबर ऑफ लेटर्स जहां तक इसने सब स्ट्रिंग निकालना है। इसके बाद हमने कंपेयर, कंपेयर क्या करता था? एक स्ट्रिंग को कंपेयर दूसरे सर स्ट्रिंग के आस्की कोड के बेस पे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। एग्जैक्टली वो कंपेयर करना। गुड। अच्छा, इरेज, इरेज में हमने कहा कि एक और फीचर क्लियर से अलावा कि हम पहले 5 को छोड़ के भी रिमूव कर सकते हैं या टोटल भी इरेज कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग्स बिग पिक्चर जो अगर अंडरस्टैंडिंग आज के लेक्चर के स्ट्रिंग्स आर नॉट जस्ट वेरिएबल्स, दे आर पावरफुल ऑब्जेक्ट्स विद बिल्ट इन इंटेलिजेंस। ये हमारे पास रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस अगर इसकी देख लें कि वेब डेवलपमेंट में, डेटाबेसेस में, AI NLP में, मोबाइल ऐप में। सो लास्ट एंगेजमेंट क्वेश्चन मेरा जो है, कैन यू थिंक ऑफ एनी एप्लीकेशन वेयर स्ट्रिंग्स आर नॉट यूज्ड, स्ट्रिंग्स यहाँ पर यूज ना और इन एप्लीकेशन के बजाय? तो अगर देख लें तो स्ट्रिंग्स की इम्पोर्टेंट, अगर डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो, वेबसाइट पे जा रहे हो, पासवर्ड लॉग इन कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, लेंथ देख रहे हो, ईच एंड एवरीवेयर स्ट्रिंग्स आर यूज। तो प्रैक्टिकली you people will realize कि almost none. So this is how much it is important कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। सो नाउ लास्ट जो टीचिंग टिप है कि प्रैक्टिस दिस फंक्शन विद स्मॉल प्रोग्राम्स, जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से। आप पोजीशन बाय पोजीशन इसको प्रैक्टिस करते हैं, इन सारों को देख के इस पे थोड़े बहुत इधर उधर करके, जैसा इसमें मैंने 0 6 दिया है, आप 3 6 करके चेक कर लें, 9 6 करके चेक कर लें, 9 15 करके चेक कर लें, डिफरेंट आप कर लें। और सारे प्रोग्राम्स आप एक सिंगल प्रोग्राम में 3 4 स्ट्रिंग्स करके ये सारे फंक्शंस उस पर कर लें। एक ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप प्रैक्टिस करें इन सारे फंक्शंस को विद सम स्मॉल प्रोग्राम्स, स्मॉल टू बिगर। सो दैट इज द ओनली वे यू कैन मास्टर स्ट्रिंग्स। तो वैसे रिस्पॉन्स आप लोगों का तो माशाल्लाह अच्छा था ऑनलाइन क्लास के पर्सपेक्टिव से। सो ये सारी जो है ये आज का लेक्चर था। थोड़ा सा हम वेट करते हैं और फिर उसके बाद अटेंडेंस 5 मिनट टाइम देता हूँ कि उस तक स्टूडेंट्स को नोटिफाई कर दें जिनके इश्यूज हैं, तो वो इश्यूज डिस्कस कर लें। तो बेसिकली तब तक थोड़ा सा मैं समरी एक और दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हमने इंट्रोडक्शन टू अ स्ट्रिंग जिसमें हमने कहा कि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू स्टोर और मैनिपुलेट टेक्सुअल डेटा, जो कि नॉर्मल हम डेली लाइफ में नॉट जस्ट नंबर्स, हम नाम अली यूज कर सकते हैं, नंबर्स 1 2 3, सिंबल्स एट द रेट समथिंग। सो अगर हम 1 2 3 4 5 स्टार्ट में बताया तो वो भी डबल कोट्स में, तो इट इज आल्सो टेक्स्ट नॉट नंबर्स बिकॉज ऑफ दोस डबल कोट्स। तो ये इंपॉर्टेंट थे, नेम्स, ईमेल्स, मैसेजेस, यूजर इनपुट्स एंड कॉल। सो ये बेसिकली करेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ग्रुप टुगेदर एज वन यूनिट। डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग कैरेक्टर एरेज हमारे पास एक होते हैं,
सी स्टाइल जो कि कम्प्लेक्स और एरर प्रोन होते हैं और रिक्वायर्स मैनुअल हैंडलिंग। ऑन द अदर साइड हम कहते हैं कि स्ट्रिंग्स जो कि रिकमेंडेड हैं, ईजियर टू रीड, आप लोगों ने देख लिया, और बिल्ट इन काफ़ी फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर एरेज में आपने डिफाइन करने होंगे स्ट्रिंग के साथ काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस हमने 8-10 स्टडी भी कर लिए हैं। सो प्रेफर्ड मेथड हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग बिहेव करता था लाइक अ डेटा टाइप सिमिलर टू इंट और फ्लोट। स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हमने कर लिया। डिक्लेरेशन हमने कर ली कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं कि वेरिएबल नेम विद स्ट्रिंग, और हमने इनिशियलाइजेशन इक्वल टू के बाद और एक हमारे पास स्मॉल पैरेंथेसिस के बाद। बट मोर इम्पॉर्टेंट हमने कहा कि आप हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूज़ करें। और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस, तो स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं प्रोवाइड करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोडिंग जितनी एफर्ट है उसको रिड्यूस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं रीडेबिलिटी को। तो राइटिंग लॉजिक मैनुअली हम डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करते हैं, उसमें अगेन क्विक लेंथ यूज़ किया था, साइज यूज़ किया था, दोनों रिटर्न करते थे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और बोथ आर वर आइडेंटिकल इन फंक्शनैलिटी। ये पासवर्ड वैलिडेशन या इनपुट लेंथ चेकिंग के लिए। फिर हमने स्वैप यूज़ किया था। स्वैप हमने दो स्ट्रिंग्स S1, S2, और ये हम एक्सचेंज करते हैं वैल्यूज ऑफ टू स्ट्रिंग्स, सॉर्टिंग और डेटा एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं। देन वी हैड रीसाइज जो कि चेंज करते हैं स्ट्रिंग लेंथ, और S डॉट रीसाइज और ऑफ एन। सो रीसाइज करते हैं एन, हम बता देते हैं लेंथ के कितने तक। तो अगर हमने बताया कि अगर एन स्मॉलर हो तो स्ट्रिंग जो है वो ट्रंकेट होके उतने समर ऑफ 20 में हमने रीसाइज 3 लिखा था तो SUM रिटर्न किया। इफ़ एन इज़ लार्जर तो स्ट्रिंग एक्सपैंड हो जाती है, वो भी हमने बताया, आप लोगों ने पूछा भी था। तो लिमिटिंग टेक्स्ट डिस्प्ले, अगर कोई लिमिट टेक्स्ट हम डिस्प्ले करना चाहते हैं या आउटपुट को फॉर्मेट करना चाहते हैं। फाइंड हमने यूज़ किया था एस डॉट फाइंड हमने 2 यूज़ किया था, आप SUM भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स में कोई टेक्स्ट। तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ये ज़रूरी है कि फर्स्ट जहाँ पर ये ऑकर होगा उसका इंडेक्स रिटर्न। 2 उधर 2023 में 2 था। स्पेशल वैल्यू इज़ नॉट इफ़ नॉट फाउंड, तो ये रिटर्न का कोई स्पेशल वैल्यू। अगर इंडेक्सिंग नॉर्मली स्टार्ट होती है 0 से। सर्च फीचर या डेटा पार्सिंग में यूज होते हैं। पुश बैक ऐड करते हैं कैरेक्टर्स को एट द एंड नंबर बाय नंबर। हम हम ये भी कर सकते हैं एस डॉट पुश बैक, और स्मॉल पैरेंथेसिस में हम ए को सिंगल कोट्स में, ये पॉइंट याद रखें, ये भी हो सकता है कि सिर्फ ए को ऐड करना चाहते हैं। बट इफ आई नीड कि मैं एक फुल कंप्लीट स्ट्रिंग को ऐड करना चाहता हूँ तो उसको यूजिंग लूप। तो उसके बाद हमारे पास पॉप बैक रिमूव लास्ट कैरेक्टर, फिर उसके बाद क्लियर रिमूविंग ऑल कंटेंट्स हमने यूज़ किया था। रिसेट वेरिएबल सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग जिसमें एक स्टार्टिंग है और टोटल लेंथ बता देते हैं। कंपेयर उसमें रिटर्न करेगा या 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, तभी हमने कहा था कि वो रिटर्न करेगा एक इंटेजर वैल्यू जिसको हम कंपेयर करते हैं, और फिर उसके ऊपर हमने कंडीशन एरेज हमने यूज़ किया। और इरेज हम करते हैं, ऑल इरेज कर सकते हैं, फ्रॉम सम पोजीशन इरेज कर सकते हैं, पोर्शन भी कर सकते हैं। थर्ड फीचर भी इसका है कि स्टार्ट पोजीशन से किस इंडेक्स से कितनी लेंथ तक आप इरेज करना चाहते हैं पोर्शन, ये भी कर सकते हैं। तो की कंसेप्ट टू रिमेंबर जो है, डबल कोट्स में अगर आप 1 2 3 लिखें, दैट इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 सिंपल। वन इज टेक्स्ट, द अदर इज न्यूमेरिक। डबल कोट्स में जो आ जाता है दैट इज considered as a text. Second important, always indexing always starts with 0. Strings are objects, not just variables. और हेडर फाइल रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट है कैश इंक्लूड। तो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस में जहाँ फॉर्म्स और लॉगिन सिस्टम, डेटाबेस में स्टोरिंग रिकॉर्ड्स, AI या NLP में टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, मोबाइल ऐप्स में मैसेजेस या यूज़र इंटरफेस, तो इट इज़ ऑलमोस्ट impossible to build a real world application without using. The strings are basically fundamental building blocks or powerful or easy way to use string class and so on and so forth. So if integers help us process numbers, still strings help us communicate with the real world, and in programming, communication becomes everything. So this was all, and now let us just move towards attendance. Time भी हो गया,
let us just conclude it. यहाँ पर सॉरी फर्स्ट मैं इस वाली चीज़ को स्टॉप रिकॉर्डिंग